अब आपके सामने खबरें रख देते हैं विस्तार से। मैं हूं विकास भदौरिया और मेरे साथ हैं शिरीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, सीधे चलते हैं संसद भवन, जहां पर राज्यसभा में इस वक्त हंगामा चल रहा है। राज्यसभा मिसकंडक्ट लोअरिंग द डिग्निटी ऑफ द हाउस अंडर रूल 255 and 256. The reason for the latest suspension were in the public domain, and the Ministry of Parliament Affairs gave reasons while moving the motion for suspension on the first day of this. I hope the entire country is watching what is happening. I don't want again to recall those forgettable acts of misconduct during the last monsoon session and that laid ground for the latest suspensions. While calling this suspension undemocratic, both within and outside the House, not even a word is being said about the reasons given for the suspension, the disdainful conduct of some members during the last session, which I have categorically called as acts of sacrilege on the day of last session. Unfortunately, a message is sought to be sent that our sacrilege of the House is democratic, but action against such sacrilege is undemocratic. I am sure the people of the country would not buy these new norms of democracy. Honorable members, there were suspensions in the past. Some of them were revoked prematurely because the errant members regretted their acts of misconduct in the House. I am deeply pained to know that from media reports of categorical refusal to express any regret for the act of misconduct during the last session led to this round of suspension. Then what is the way forward? You don't want to regret your misconduct, but insist on revoking the decision of this August House taken as per the due procedure laid under the rules of the House. Does this amount to upholding the principles of democracy? Leader of the House has stated in his House that revocation of suspension could be considered if the concerned express regret for what was done in the House during the last session. Deputy Chairman has urged both the sides to talk it out and do the needful to move forward to enable normal functioning of the House. As it is human to err and also human to make amendments. One cannot refuse to amend the insist on glossing over the wrongdoings. Suspensions either in the past or now are only the expression of disapproval of the acts of misconduct of some members of the House. So disapproval of undemocratic conduct in the House cannot be described as undemocratic for sure. I urge both sides of this August House. Please talk it out and then find a way to do the mandated job of this House. This is my appeal to the entire House. Now we go to the zero hour. Sri Ajay Pratap Singh, zero over. अगर माफी मांग लेंगे तो उनका निलंबन रद्द हो सकता है। बिना माफी के आगे बात नहीं बनेगी। अगर सांसद माफी मांगते हैं तो ही बात आगे बढ़ेगी। ये बयान बाकायदा सभापति वेंकैया नायडू की तरफ से पढ़ा गया। अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं। अंकित, बयान पढ़ा गया, बाकायदा सांसदों से अपील की गई कि अपने कंडक्ट के लिए अगर माफी मांगते हैं तो व्यवहार उनका जो निलंबन है वो रद्द हो सकता है, बिना उसके बात नहीं बनेगी। बिल्कुल विकास, और ये पिछले 2 दिनों से लगातार यही कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। अब पिछले 2 दिनों की बात करें तो सदन राज्यसभा की कार्रवाई लगातार बाधित होती रही है और इसकी वजह से जो कुछ महत्वपूर्ण बिल है या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर तक चर्चा नहीं हो पा रही है। तो आज वेंकैया नायडू साहब ने साफ तौर पर कहा कि सदन की गरिमा का अगर गिराने का काम किया गया है तो उसके लिए माफी मांगी जानी चाहिए। विपक्ष जबकि जो उन्हीं सांसदों का साथ दे रहा है जिन्होंने सदन की गरिमा गिराने का काम किया है, पूरा देश देख रहा है, क्योंकि इस तरीके का बर्ताव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और वेंकैया नायडू ने बाकायदा पिछले जो है कई सत्रों या कई सालों का जिक्र करते हुए कहा कि ये कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरीके से कार्रवाई की गई है, लिहाजा कार्रवाई को कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। अगर माफी मांगते हैं तो सदन की गरिमा को ये भरोसा देते हैं कि वो तार नहीं करेंगे तो उनका निलंबन पर सोचा जा सकता है, लेकिन फिलहाल निलंबन वापसी का सवाल नहीं। और वेंकैया नायडू ने साफ कह दिया है कि ऐसे मामलों में किसी भी सूरत में कोई भी नर्म रुख नहीं अपनाया जा सकता जहां पर संसद की गरिमा का सवाल हो। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अब माफी से कम पर कुछ भी नहीं, निलंबन वापसी को लेकर आगे कुछ नहीं हो सकता जब तक कि माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन यहाँ पर विरोध भी एक तरफ लगातार जारी है और अभी अपडेट ये है कि राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा एक बार फिर से, क्योंकि हंगामा जोरदार था। वेंकैया नायडू की तरफ से एक बार फिर ये साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि जो कुछ किया गया
वो निलंबित उसी के आधार पर हुए हैं ये सभी सांसद, और जब तक ये अपने किए पर माफी नहीं मांगेंगे तब तक कुछ सोचा नहीं जाएगा निलंबन वापसी को लेकर, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ विरोध भी पुरजोर तरीके से हो रहा है। कल भी आपने देखा किस तरह से विरोध हो रहा था, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, और आज फिर से राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अंकित, सवाल तो यही कि क्या यही होता रहेगा? 4 दिन, चौथा दिन है आज, और आज भी राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित। निश्चित तौर पर शिरीन, और इसकी वजह से हो क्या रहा है, कल जैसे जो है महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो सकती थी, 0 आवर में नोटिस दिया गया था कि उस मुद्दे पर जो है जवाब आना चाहिए, लेकिन उस पर जो है नहीं हुआ। आज भी कई अहम महत्वपूर्ण मुद्दों पर 0 आवर का नोटिस दिया गया था, उस पर भी चर्चा नहीं हो सकी। यहाँ तक कि डैम सेफ्टी बिल, जो कि पिछले 2 दिनों से राज्यसभा में लिस्ट हो रहा है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है क्योंकि सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। इसका असर ये हो रहा है लगातार हंगामे के चलते जो कार्रवाई स्थगित हो रही है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि देश से जुड़े हुए हैं, जनहित से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन पर भी चर्चा नहीं हो पा रही। जबकि संसद और सांसदों का जो अहम जिम्मेदारी है वो यही है कि देश हित और जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दे उठाएं। लेकिन वेंकैया नायडू ने भी साफ तौर पर कहा कि ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष को बैठ करके कोई बीच का रास्ता निकालना होगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है कि इस तरीके से हंगामा होता रहे और बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित होती रहे। देखिए, बार बार रद्द करनी पड़ रही, कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही है। लगातार जो विपक्ष है वो हंगामा कर रहा है। आज बाकायदा सभापति की तरफ से एक बयान पढ़ा गया, अपनी कार्रवाई को सदन में की गई 12 सांसदों की निलंबन की कार्रवाई को सही बताया गया, और ये भी बताया गया कि व्यवहार के लिए सांसदों को अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी होगी। अगर वे माफ़ी मांग लेंगे तो कार्रवाई पर पुनर्विचार संभव है, लेकिन बिना माफ़ी मांगे उनके व्यवहार पर सदन उन पर की गई कार्रवाई पर कोई पुनर्विचार नहीं करेगा। तो सांसदों के निलंबन पर एक तरफ हंगामा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चेयर अपनी बात पर अडिग है। संसद परिसर में बाहर गांधी प्रतिमा पर तमाम सांसद विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सदन के भीतर भी तमाम विपक्ष के सांसद वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं, और जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, जबकि लोकसभा की कार्रवाई अभी भी चल रही है। वहां प्रश्नकाल चल रहा है, हालांकि थोड़ा बहुत हो अल्लाह हंगामा विपक्ष की तरफ से वहां भी किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।